Some of you have texted me personally in Vox, in Telegram as well as email. तो आई वुड लाइक टू जस्ट रिक्वेस्ट दैम कि यू कम फॉरवर्ड एंड आस्क योर एनी डाउट. आपको किसी प्रकार का डाउट है डेफिनेटली आस्क एंड नो नीड टू फील कि सेम कि पब्लिकली हाउ कैन आस्क बिकॉज लाइक यू सो मेनी पीपल आर देयर. Because of your question or your problem some other solution could be there, so try to understand and let's not be quiet. You can go ahead. या बताइए अब क्या तैयारी में प्रॉब्लम चल रहा है आप लोगों का. व्हाट्स द Hi, मेजर. sir. या Hi, निहाला. sir. या निहाला I'm गो अहेड. Nihala. I'm from Kerala, sir. ओके. Actually, I have joined for your course, and now only I have started your lectures, ओके. ओके. and I have started with micro and macro. Macro, first go through macro. I told already to my all students, watch first few lectures of macro, because while teaching macro itself I have discussed lots of other things regarding the books, regarding the strategy, regarding the cutoff and all. So go through first macro, then move to any topic, be it stats, micro, anywhere. Yeah, go ahead. Okay, sir. Actually, I have doubt with micro. I feel so difficulty with micro when it comes to the problems. Okay, did you see the pyq? PYQ, have you sent on Telegram? Yeah, it's everywhere, be it Telegram, be it application, anywhere, everywhere it's there. See Okay. how it looks difficult, because if you see the paper of ISI, if you see the paper of DSE, if you see the paper of JNU, definitely it would look difficult, because it's CUET exam, which has the beauty of having combination of conceptual things, theoretical things, as well as numerical parts. What I found, even in micro there are hardly 2 3 numericals from micro. Okay, that's actually my doubt, sir. Yes. How much should we concentrate on numericals? No, see, first you should see your comfort zone. If you see कि no, I am good in maths, I can do, then little push up yourself. But if you think no, in maths I am literally very bad, I am not particularly talking about you, I am talking about all the students, because we know our limit. In that situation you focus on more analytical part and theoretical part rather than numerical part, because in such a span of just 2 and 3 months it's very difficult to allocate time properly. So in this way you know the weakness or strength and accordingly you give the time, because hardly there would be 2 3 micro numericals. कुछ मार्केट से होंगे, कुछ कंज्यूमर थियरी से होंगे, एक या दो क्वेश्चन प्रोडक्शन फंक्शन से होंगे. सो फॉर दैट आई डोंट थिंक कि मोर देन 50% ऑफ ऑल टाइम you should go for I mean solving numericals only. So it's all about optimization of time and resources. Now we have, Yeah. in terms of resources we have our time mainly, because books and classes everybody has. So here time is our key resource. Hope I could Okay. I could reply you. Yeah. So when I search on YouTube, there is a lot of problems regarding micro. That's the constraint optimization, Lagrangian method. My doubt is that whether I should follow that Did you kind of see mathematical. pyq? No, no, not yet, See, sir. if you go to the hotel, if you go to the restaurant, you need own things. Doesn't matter how expensive, how lucrative things are there. You need own things, right? Okay. Looking at your budget, looking at your need, looking at your desire, you fulfill the utility and you get the product from the market. So similarly, be it YouTube, be it class, anywhere, you see the need of exams and accordingly you go ahead. That's not a worrisome. Okay, sir. Actually, I am trying to cover most of the problems from HL Ahuja. Yeah, So, even if you see the all examples with conceptual clarity of HL Ahuja, trust me, microeconomics के सारे numerical you can do, trust me. But okay, given that there should be conceptual clarity, rectification and mug up वाले things नहीं, and all examples, even solved examples, trust me, it's enough, because I have matched with the PYQ. The level of CUT is same like. yeah, okay, sir. Actually, my doubt is this: how much should I concentrate on numericals? That's only one of my doubts regarding this See, if session. you concept focus on numericals has the beauty of it. It covers your theory, it covers your analytical skill, like when question is asked on statement wise na. So with numericals you can cover all. So there are two ways of studying microeconomics. I told na, if you are really good in mathematics, go through numerical only, but if you are not that good in mathematics, then better to focus on analytical part and theory part, last numerical. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. Yeah, anyone else, go ahead.
and feel free to ask anything. We have one-to-one conversation. Ask your doubt. No need to text. I may not read your all text. Go ahead with your any doubt. And regarding your semester exam, I have told many times, almost your 5 semester gone. I mean, in December or January, many people will have paper. And after 5th semester, your last semester would be left. Because of that only, please don't postpone your level of preparation for CUET. It would be really dangerous. It's a matter of 1 year. I told already key which is common to the syllabus of CUET, and I presume most of the graduation syllabus has nearly 60-70% graduation syllabus, and CUET has the common things. So focusing on CUET will have double advantage. One advantage, you will be prepared for the examination, and second advantage, you will be ready for your semester examination as well. So please don't have a dream of gold medalist. That gold medalist attitude can cost you of at least 1 year. Trust me, I know many people, I know personally, no need to tell the name, from last year they are university topper, college topper, but couldn't get good university in CUET like DSE, JNU, HCU and all. For all these, minimum you need 180 plus. They had something 160, 65, something like that. Some private universities she got, okay. But again, such people are writing again for CUET despite they are the toppers. So don't keep that topper attitude always with the competitive examination. That could really cost you. ठीक है. हाँ, अगर आपको यह लग रहा है कि नो आई हैव टू बी द टॉपर, डजेंट मैटर वेदर आई कुड क्लियर CUET एंड ऑल, देर आर वाइड डिफरेंस. सो आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा, राइट. It's you only, because everybody is there. In economics, CUET itself, nearly 20,000, looking at the data of NTA last year, nearly I think 18,000 people wrote the exam, and all 18,000 want to be the topper in their colleges. Some of them will be. So we have to be above average, not below average, not even average, just above average, to ensure top 5 good institute which provides PG economics syllabus which is near to the CUET. Like even I would say, if you prepare little advanced level of CUET, you could get IGDIR, you could easily get MSc. CUET लेवल का ही सिलेबस आपका MSc का भी है, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का भी है, दैट इज मद्रास MSc, गोखले का भी है. Then comes under CUET DSE, JNU, HCU, BHU, Kerala University, Pondicherry University. It's all up to your choice, proximity, I mean future goals, what you are aspiring for. But if you are looking for definitely placement, or regardless of placement, but you are looking for top 5-6 institute, already I have made separate video that I would like to again quote कि आपको definitely you should try for DSE, JNU. Apart from CUET, you can look for IIFT, and you can definitely try for MSc. These all are good institute regardless of its money and all. We know that fee is very high in Gokhale, MSc and all. ठीक है. But most of the institutes which comes under CUET, they have very low fee, except DSE, because DSE has higher cost of living. They don't provide hostel to every students. Okay, and my aim is to target the mass. Upper layer people, they know where they have to get, because they have all the facilities coming from the information facilities to the classes facilities, their background, so they know the things. But people who are in the middle class, or the people who has the problem of I mean financial problem, as well as they don't have that strong backup means till graduation they didn't read that with that clarity, so they have really problem. So my target is that only. Regarding preparation and all things, I would again and again quote, let me share the screen. Before sharing, I would again like to just give you the opportunity. If any one of you have anything, do ask, as Nihala asked, and I think Saroj also asked few questions. Go ahead, and after that we'll have my own session of 10 to 15 minutes, how to approach all these things, how to definitely maximize our score. Yeah, go ahead. No need to hesitate, definitely you go ahead. I think nobody has problem. Chalo, let me share the screen. Yeah, Isan, you had some doubt. Yeah, go ahead. Sir, how to do with the part A of CUET exam? Not important. Trust me, any of you, it's my own empirical study. You don't study, out of 20 questions, 12 to 14 you will get correct. You study very much, you will correct 17, 18. So that is left for just last month, before
I think 15 से 20 दिन, nearly 15 to 20 days, just solve some PYQ, just solve, start, हाँ, newspaper तो you keep reading, around 9-10 question is asked from the न्यूज़पेपर, आई मीन इंग्लिश न्यूज़पेपर, आप उसको पढ़ते रहें, मैथ्स के बेसिक कर लें। अब करेंट अफेयर्स है, आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपको नहीं आएगा तो एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे। बट इकोनॉमिक्स हैज़ positive direction. The more you study, the more you will mark, the more you will get. But in part A, the more you study, there is no guarantee you will get good marks. So be the average. I think around 15, 12 to 15 is good score. I again would like to quote last year, like, I mean, who scored one of the highest. I won't say all India highest, but one of the highest. But DSE in Dhruv, even he had only 17 or 18 correct. He didn't study, but he was preparing for everything like IT, GAM, GATE, and all. So if you study economics as a whole, given that your English is somewhat okay, easily 15 you can score. That's my experience. Not my lots of experience has shared the experience. But keep focusing on part A could really harm you. मेंटली आप पार्ट ए में फंसे रहोगे, पार्ट बी पे ध्यान नहीं आएगा, क्योंकि लगेगा अरे इंग्लिश है कर लूँगा, आपको PYQ करने में मज़ा आएगा, मैथ्स इजी आते हैं, कुछ रीजनिंग आएंगे। दैट्स नॉट द लाइफ, दैट्स नॉट द इकोनॉमिक्स। अल्टीमेटली अगर आप किसी को JNU जाना है, मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी प्लान, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ मैसेज कि सर मुझे सिर्फ JNU ही जाना है, आई डोंट वांट टू, इवन आई सॉ ए मैसेज, सर आई डोंट वांट टू प्रिपेयर फॉर CUT बट जस्ट आई वांट JNU। सो सच काइंड ऑफ दे हैव पैशन फॉर JNU, व्हाट आई मीन। तो उन्हें पार्टी करने की क्या ज़रूरत है? गॉट इट ईशान? पार्ट ए को आप इग्नोर बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। इवन डोंट गिव 50-50, 80-20, दैट टू इन द लास्ट मंथ। आई कैन गारंटी यू without studying too much, but don't ignore, even with the average study, 12 to 14 correct you will get. If you study a lot, out of 25 question, 17-18 maximum you will get. बहुत hardly तो 20 question, उससे ज़्यादा सही नहीं होंगे। There is also negative marking. And part A sometimes takes lots of time. In economics, if you know, okay, cross elasticity this, which of the following theory this, the investment multiplier was given by this economist this. बट इन पार्ट ए वंस यू इन्वॉल्व, सपोज दैट आप प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं या परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं, एंड स्लाइट मिस्टेक यू हैव डन इन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, योर 10 minutes गॉन with your -4 marks. So you have to optimize the things. We are economist. Optimization means given the resources, given the time, how we score maximum. That should be our aim. Hope Ishan I could take your all doubts, right? Yes, sir. Thank you. हाँ चलिए, anyone else? Thank you for asking and giving I mean genuine question, because it was the question not of yours. Many has the same issue. Go ahead and don't, after this session, don't reply inbox, sir ये कैसे होगा, sir वो कैसे होगा। 3 days before I told you we will have a common open session. You can ask anything, and now here don't hesitate. Do ask. Yeah, Bhavishya, go ahead. एक्चुअली कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सोशल मीडिया पहले आप लोग छोड़ दीजिए। एनीवन, आई एम नॉट पर्टिकुलरली टारगेटिंग यू, कमिंग टू मी, आई ऑल्सो यूज लॉट्स ऑफ सोशल मीडिया एंड वी हैव फ्यू पीपल, बिकॉज दैट्स आवर प्रोफेशनलिज्म, हाउ वी वर्क, चाहे सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, क्लासेज एंड ऑल। टू बी वेरी आई मीन ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, from graduation to masters, I had Facebook account, I didn't even log in, I didn't install anything. And if possible, I know many of students, they don't have even YouTube. Trust me, YouTube is not necessary as well, it's not required. First, focus class, use Google, no doubt, Google, Microsoft, whatsoever search engine, and focus on books. These 3 things. Books means whatever book, PYQ, that reading material, be it PDF, be it hard copy, books, class lectures, your own notes. Last resort, consider any video or any reels. That is my open advice for everyone. This is not particular to him only. This is open to all the students whosoever watching, hundreds, thousands, and what number. Okay, this is very, very important. Next 2 months, this is really distracting. For giving you the example, you know what is consumer surplus. To know consumer surplus, even I have taught in the class, even if you know, even if you have read in books, you will watch 10 to 15 lectures, trust me. Even 2-3 minutes, your 30 minutes gone. You please observe it, such things you have seen. Sir, it's reality. It's reality, because I have observed when I was preparing for UPSC. Suppose that I mean 17, 18 or something,
व्हेन जस्ट आई स्टार्टेड, तो जीएसटी कुछ आया, ठीक है। और जीएसटी मैंने सारा आर्टिकल काफ़ी अच्छे से पढ़ा। देयर वाज ए मैगजीन, स्टिल इट इज़ कमिंग, योजना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैगजीन है। योजना पे पूरा एक सीरीज आया था 50 पेजेस का, ठीक है। आई हैव रेड, आई हैव मेड नोट्स, एवरीथिंग एवरीथिंग आई नो। आई अटेंडेड लॉट्स ऑफ सेमिनार जो कि यूनिवर्सिटी में कंडक्ट होती थी। डिस्पाइट रात को आके मैं बहुत सारे एजुकेटर जो आपके फेवरेट होते हैं उनकी एक एक घंटे की लेक्चर देखता था, और लास्ट में कुछ नहीं मिलता था एक्स्ट्रा, नथिंग। इट हैपेंस। Please stop doing such things. Have faith in you, and that time you utilize for other things. The biggest challenge in the modern era ना, the time. टाइम आपके पास बहुत है। पहले क्या था आपके पास, एवरीथिंग सर्च करना पड़ता था। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्टडिंग ग्रेजुएशन 16 वगैरह में, तो वी हैड 2G, 3G आ गई थी, बट आई वाज यूजिंग 2G 3G मैक्सिमम। तो कॉपी पे मैं लिख के लिखता था कि आफ्टर द डिनर दीज 10 टॉपिक्स आई हैव टू गूगल। ये नहीं कि तुरंत डाउट हुआ तुरंत गूगल कर लिए, नहीं, अभी पढ़ लो यार, पढ़ लो, बुक्स पढ़ रहे हो पढ़ लो, नोट्स पढ़ रहे हो पढ़ लो, लेक्चर पढ़ रहे हो पढ़े पढ़ लो ना। एंड कीप ए पेन पेपर, राइट ऑल 8-10 टॉपिक्स, एंड पेपर, टेक ए पेन पेपर और बुक या फिर फ़ोन जो भी है, लैपटॉप टैब, और सारे को आप नोट करो, आई मीन सर्च करो, फिर उसके नोट्स बनाओ। तो सारे एक दिन के टॉपिक आप गूगल के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू जैसे करना है आपको, विद इन 1 आवर आपका टाइम बच जाएगा। परंतु जब आप पढ़ रहे हो, 10 मिनट पढ़े, फिर कुछ स्टक हुए, तुरंत गूगल किए नहीं। हाँ, अगर उस स्टक के कारण, लाइक समटाइम्स मैथमेटिकल कंसेप्ट्स आर रियली बॉदरिंग, अगर आपका आगे का जो पैराग्राफ है इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, देन यू गो एंड गूगल। बट इफ इट्स की ओके इट कैन बी इग्नोर्ड, दिस पर्टिकुलर थिंग्स आई कैन सर्च लेटर ऑन, then go ahead. Yeah, Bhavishya, sorry for taking this long, but that's the reality across the, I mean, India especially. Go ahead with your doubt now. सर वही था कि मेरी कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं हो पा रही थी। एक्चुअली आई एम नॉट एन ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राइट नाउ। Okay, आई हैव डिलीटेड ऑल माय एप्स। okay, very good. फिर भी इन रियलिटी इफ आई गो ऑन यूट्यूब ना, आई Hmm. डू certain things which are not at all necessary. I know. The first and the biggest challenge, you people, I don't know how you call social media is, in fact, the most distracting social media is not Instagram, not Snapchat, not WhatsApp, it's YouTube. Trust me. First delete YouTube for particular time. Use it, I mean, after 3 days, 4 days, weekly, कुछ देखना हो तो। कोई मतलब ही नहीं, YouTube का ज़रूरत नहीं है यार। पढ़ ले अच्छे से 15 दिन 20 दिन, फिर जम के YouTube देख लेना, कुछ नहीं मिलेगा YouTube पे, एंड यू वॉन्ट मिस आउट, ट्रस्ट मी। आपके व्हाट्सएप स्टेटस में, सपोज दैट टुडे आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो ऑन 3 दिसंबर, आज इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है ना, तो जस्ट आई वोक अप, आई यूजुअली वेक अप वेरी लेट, तो मैंने गूगल पे सर्च किया इलेक्शन का क्या रिजल्ट चल रहा है। इवन बिफोर दैट व्हाट्सएप स्टेटस आई चेक्ड एंड एवरीबडी हैज अपडेटेड देयर, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। द प्रॉब्लम ऑफ फोमो, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। नो नो नो, now already information is, I mean, overloaded to us. Same reel, same content, same information you will get at Insta, Twitter, WhatsApp, YouTube, same चीज़। क्या फ़र्क पड़ता है? 30 सेकेंड भी आप हर जगह देखें, 5 आई मीन सोशल मीडिया हैंडल पे 30x5 गए आपके 2 से 3 मिनट सेम चीज़ को बताने में। इट सेम अप्लाइज टू एजुकेशनल स्टफ्स। तो इट विल टेक टाइम। Bhavishya, I can understand it's a little personal problem as well. If possible, a little bit, you please take yourself in isolation mode also. It works, and we have very less time in examination. If you are very much passionate about examination, nobody can stop you. Isolation means not the friends, family. Isolation means other things what you do. एंड थोड़ा बहुत फिजिकल चीज़ों पे आप काम करते रहें, इट वर्क्स। इवन माई प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज। यूजुअली आई प्ले, आई मीन इवनिंग टाइम, इधर बैडमिंटन और टेबल टेनिस। इफ़ आई डोंट प्ले, माई नेक्स्ट डे इवन गॉट हैम्पर्ड। तो इफ़ पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग, आई मीन एवरीबडी शुड डू, तो आप लोग थोड़ा फिजिकल चीज़ें कुछ करें, चाहे योगा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, एनीथिंग। जस्ट टेक ए कंपनी ऑफ योर फ्रेंड्स, इट वर्क्स, एंड डू सम फिजिकल वर्कआउट। कुछ लोग जिम करते हैं, कुछ रनिंग करते हैं, इट्स देयर चॉइस। तो 20-30 मिनट्स 1 आवर इट वर्क्स। तो प्रॉब्लम है भविष्य, आई कैन अंडरस्टैंड। और कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम समटाइम्स इट्स मोर ऑफ पर्सनल, ठीक है। तो अधिक से अधिक चीज़ों में ना अभी इन्वॉल्व हुए, सेमेस्टर के एग्ज़ाम को प्रायोरिटी ना दें। दिस इज़ माई वेरी, आई मीन, स्ट्रेट वर्ड्स एडवाइस फॉर यू। सेमेस्टर एग्जामिनेशन अगर आप till now, if you have scored very well, above 7 CGPA, above 8 CGPA, and my idea of graduation is no need to be 80-90% or 9 CGPA.
first division is necessarily, because for any forthcoming examination you need first division marks to apply for even some of examination. तो उसको आप बरकरार रखें और hope it will sorted out. Please work, or if it doesn't get sorted after a week, do inbox me, we'll have some one-to-one call session also. ठीक है भविष्य? Thank you, sir. Thank you so Okay. much. Yeah, Khushi, go ahead. You had some doubt. Hello, sir. So, the thing is, I have joined this course 2 months back, Hmm. and I am like done with micro and macro and a little bit of Indian economics as well. Okay. So, a little bit of problem which I'm facing is with maths. It's Okay. like when I attend the lectures, Hmm. the teacher there was like very nice. Hmm. When I'm solving the questions along with her, Hmm. I'm able to find solutions. Hmm. But when I practice on my own, it's difficult to identify what exactly to put there. No, What was the no, method? got it. फर्स्ट थिंग आप ये करें कि आप सबसे पहले उसका प्रॉपरली नोट्स बनाएं, and you are already advised read same thing from the book as well, because if you get the idea कि सेम चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने समझाए हैं डिफरेंट तरीका से, बिकॉज इट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू हैव नॉट स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, राइट? तो I have, you had, sir, I'm from commerce background only. okay, But the major issue is like I am working right now. got it. So, No, it takes time. Let me complete. It takes time. First thing ki, are you writing for economics entrance examination या mathematics? First you should keep in your hand. People who have not that much passion about mathematics, जिनके पास पैसन है उन्हें मैथ्स की लेक्चर, मैथ्स की क्लास की जरूरत नहीं है एट ऑल. आई नो मैनी पीपल, ठीक है. हाँ, पीपल हु डेफिनेटली नीड गाइडेंस एंड ऑल, एनीवन, आपको सिर्फ मैथ्स में गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जैसे मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, फंक्शन क्या है, सेट क्या है, ओवरऑल आपको पता चल गया. नाउ इट्स योर ड्यूटी टू लुक एट द बुक्स कि बुक्स में क्या कहा जा रहा है, इज इट रियली मैचेबल या बुक्स में कुछ नया है. फिर बुक्स के आप एग्जाम्पल को देखें. द ब्यूटी ऑफ बुक इज़ दैट दे गो स्टेप वाइज. पहले आप वो इजी चीज़ों को करवाएंगे, फिर टफ चीज़ों को करवाएंगे, गिवन द टाइम कॉन्स्टेंट एंड दैट फिजिकल फॉर्मेट वी डोंट हैव. तो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मैनी पीपल टू एसेस द सेम थिंग इन ऑनलाइन मोड. तो आप क्या करें, एक बार बुक को देखें, एंड गिवन दैट कि आपका क्या नॉलेज का लेवल हो गया है, तुरंत आप एक बार PYQ देख लें. दैट टू ओनली CUET, डोंट गो अदर पेपर, बिकॉज देयर अदर सिलेबस लाइक, जैसे अब आप ISI का देख लो या DSE का देख लो, वह सिलेबस CUET का नहीं है. 23, आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग 23 वॉज वेरी फैंटास्टिक पेपर. इट वॉज बैलेंस्ड पेपर. कुछ वहाँ पर क्वांट भी थे, कुछ थ्योरी भी थे. तो आप क्या करो खुशी, एक बार पेपर को देखो और पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ लेक्चर्स. क्या लेक्चर के मदद से यह पेपर से सॉल्व हो जा रहा है? अगर नहीं हो पा रहा है तो सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चन जो दिए हुए हैं PYQ में, उस तरह के क्वेश्चंस आप कर लो. बहुत सारे हैं टॉपिक वाइज, मैं आपको बुक भी नाम बता चुका हूँ. आप सिडेस्टर हेमंड से कर सकते हो, उसके एग्जाम्पल कर सकते हो, इसी चांग से कर सकते हो. द नेचर ऑफ क्वेश्चन विच इज़ गिवन, जैसे सपोज दैट कुछ नॉर्मल लेते हैं, कुछ भी डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है, log x का या x⁻⁹ समथिंग लाइक दैट. ओके, कुछ भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो डू द सिमिलर क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ 8, 10, 20 लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस यू डू फ्रॉम द बुक्स एग्जाम्पल्स. जब वो रिपीटेड मोड में करोगे तो आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा फॉर श्योर. ठीक है, इसको आप करके देखो. एंड प्लीज ऑप्टिमाइज द टाइम. दिस सेशन इज नॉट पर्टिकुलर फॉर एग्जैक्ट थिंग, एंड वी आर नॉट हियर टू प्रोवाइड यू डिग्री एंड ऑफ 3 years आपको जितना पढ़ना था कॉलेज में पढ़ लिए. मेरा मानना है अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ये ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से आपका स्ट्रांग हो जाना चाहिए, तो कि लास्ट 3 years तक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. बट अगर आप लास्ट में इसको सीखना चाहोगे, मैथ्स एंड स्टैट, इट्स रियली टाइम टेकिंग. तो सीखने के व्यू से दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. हाँ, टू स्कोर द है यू हैव टू नो, जैसे मैट्रिक्स ईजी होते हैं, डिटर्मिनेंट ईजी होते हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन ईजी होता है. हाँ, डिफरेंस इक्वेशन थोड़ा टफ हो जा रहा है, बेसिक इंटीग्रेशन ईजी हो रहा है. यह 4-5 टॉपिक कर लोगे तो मोर देन 50% ऑफ मैथ्स कवर. सेट थ्योरी कर लिए. अगर आप 10 क्वेश्चंस मैथ के आ रहे हैं इन एग्जाम, तो 5-6 यू कैन डू इट एंड इट्स नॉट ए बिग डील. आउट ऑफ 75 आपको जो है टॉपर जो है वो 65 ही करते हैं, 65, 68, 70 मैक्सिमम. ठीक है, 4-5 मैं छोड़ दूंगा. हमें एवरी क्वेश्चन इज फेसिंग ओनली 4 marks. Got it? Either you do any difference equation or you do basic theoretical microeconomics. Got it? So my aim is to maximize the score, not to teach you the particular topic. Hope खुशी please don't be that emotional. थोड़ा डिटैचमेंट जरूरी है,
बिकॉज अभी क्या है, आपको पहले स्कोर अच्छा करना है. आफ्टर मार्च देर इज नो एडमिशन टिल जून जुलाई. ठीक है, आपका एडमिशन जो है जून जुलाई के पहले नहीं होगा इन एनी यूनिवर्सिटी. हाँ, इफ यू थिंक नो यार इन पीजी आई विल गेट द ट्रबल, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज एरिया विच इज लेफ्ट ओवर. गॉट इट? होप आई कुड एड्रेस इट, राइट? Yes, 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 sir. I'll exactly do the same. Thank you. हाँ हाँ, चलो go ahead. Anyone else, or shall I share the screen about we'll go through one syllabus and see the topics that are important. Anyone has any issue? No one. चलो, give me just 5 minutes. Let me share the screen. I think if screen is visible, let me know. Yes, it's visible, sir. All okay? Just a minute. So you can see that we have the syllabus. We have syllabus for the CUT PG Economics. ठीक है, सिलेबस. अब इन सिलेबस में देखिए आपका जो मेजर टारगेट होगा, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, योर मेजर टारगेट शुड बी माइक्रो इकोनॉमिक्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स. एंड आई कंसिडर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड कंजम्पशन. ये सारे के सारे एक ही पार्ट हैं, यह अलग नहीं है. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी और कंजम्पशन, यह तीनों आप एक साथ देखेंगे. आफ्टरवर्ड्स स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिक्स पार्ट में देखेंगे. खासकर जो यह ऊपर वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इन स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन वगैरह, दीज आर वेरी वेरी इजी टॉपिक एंड डायरेक्ट एंड फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स. जैसे एंड ऑफ दिसंबर से एज आई टोल्ड कि खासकर कोरिलेशन, रिग्रेशन, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन, दीज ऑल आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास. तो इन सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वाइज रिवीजन करेंगे. क्वेश्चन वाइज मीन्स वी वॉन्ट बी डिस्कसिंग टॉपिक एंड द theoretical portion because already we have covered the basics of it. Now the problem is that प्रैक्टिस. तो आई एम इंश्योरिंग यू कि प्रैक्टिस हम क्लास में ही करें. डेली करीब आधे एक घंटे का सेशन होगा एंड टॉपिक वाइज हम क्लास में ही क्वेश्चंस को कर लेंगे. दैट वुड बी मोर हेल्पफुल. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का आपको टेंशन नहीं लेना. हाँ, मैथमेटिक्स में क्या है थोड़ा टेंशन, जो टफ टॉपिक है, जैसे वेक्टर को आपको मैट्रिक्स से पढ़ना है. ठीक है, वेक्टर ये फिजिक्स वाला नहीं है, ये मैट्रिक्स वेक्टर है. ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ NTA, दे डिड नॉट डिफाइन द सिलेबस प्रॉपर्ली. सेट ईजी है, फंक्शन का बेसिक कर लेंगे. डिफरेंस इक्वेशन अगर टफ लग रहा है तो यू कैन स्किप वन क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, हंसी खुशी हम छोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम. हमें ऑप्टिमाइज करना है मार्क्स को. फिर डिटर्मिनांट्स हो गए. LPP के थियरी आए थे लास्ट टाइम, दिस टाइम आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि थियरी ही क्वेश्चन आएंगे. अगर आएंगे तो कोई बाउंडेड रीजन वाला एक आ सकता है इसमें. और डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा रिलेटिवली ईजी है, बेसिक वाला कर लेंगे आप. और इसमें डिफरेंस इक्वेशन में वही फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री तक नहीं भी जाएंगे तो भी चलेगा. तो बेसिक यू शुड नो. एवरेज तो मिनिमम आपको करना है. जो पीपल कमज़ोर है मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ. एवरेज आपको मिनिमम लेके चलना है, एवरेज के बिलो नहीं जाना है. ठीक है, नाउ कमिंग टू इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में मैंने जो लेक्चर कराया है, क्लास लेक्चर, दैट आई एम गारंटिंग यू कि अगर आप उतना भी कर लेते हैं, अगर 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रस्ट मी, आउट ऑफ 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन अपने क्लास से आएंगे. यस, 11 to 12 क्वेश्चन. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग यू बिकॉज आई हैव डेफिनेटली ए गुड होल्ड ऑन द इंडियन इकोनॉमी. के एग्जाम में ये लोग पूछते क्या है, गिवन दैट कि मैंने खुद 2 बार इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का इंटरव्यू दिया एंड इन दैट देर आर फ्यू पेपर्स. एवरी टाइम आई स्कोर्ड वेरी गुड इन इंडियन इकोनॉमिक्स पेपर. 200 मार्क्स के होते हैं. तो आपका जो ये ऊपर वाला ट्रेंड है, दैट वाला ब्रिटिश वाला इंपेरियल एरा एंड ऑल, फ्रॉम हियर हार्डली 1 or 2 क्वेश्चन दे आस्क. तो इफ़ यू आर नॉट गुड एट ऑल इन ऑल दिस थिंग्स, तो जस्ट क्लास लेक्चर और जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं दैट इज़ मोर देन एनफ. 1-2 क्वेश्चंस वहाँ से हो जाएंगे. द मेजर चंक विल कम फ्रॉम दिस ईयर. ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो अभी 2023 के अपडेट्स वगैरह हैं, स्कीम्स वगैरह हैं, या जो भी चल रहा है, MPC, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, और खासकर ये पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी विथ पब्लिक इकोनॉमिक्स दे आस्क. इट इज इन योर सिलेबस देर इज ए नो पब्लिक फाइनेंस. मैनी पीपल वर आस्किंग पब्लिक फाइनेंस के लिए कौन सा बुक पढ़ूँ. आई वुड से नो. पब्लिक फाइनेंस मैं इंडियन इकोनॉमी के साथ करवा रहा हूँ. अभी टैक्सेशन वगैरह हो गया है. देखिए टैक्सेशन में अब जैसे ये है टैक्स इंसिडेंस, दिस पोर्शन वाज कवर्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल. ठीक है,
तो ओवरऑल अब देखिए इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड से लास्ट टाइम आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस आए एंड ऑलरेडी वी हैव जस्ट 3 टॉपिक, this Adam Smith, Ricardo, Heskerolin theory and new trade theory. But you are not supposed to limit yourself. When I was covering 360-degree approach of syllabus, in that I have already discussed कि आपको 110% सिलेबस कवर करना है. प्लीज वॉच दैट वीडियो, व्हाट आर द एक्स्ट्रा टॉपिक्स आई हैव डिस्कस. अब हमें यह टारगेट है कि सर इसमें सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे कम फोकस कहाँ करें, ठीक है. तो many a times just 4 area you have to focus. First is micro, MI, देन मैक्रो, MA, ठीक है, MA माइक्रो मैक्रो हो गया, यह मेजर होगा. देन मैथ एंड स्टेट आर टुगेदर, सबसे लॉन्गेस्ट टॉपिक यही होगा, मैथ एंड स्टेट. आफ्टर दैट इंडियन इकोनॉमी, ये वाला पोर्सन. इंडिविजुअली आप देखोगे इंडिविजुअल लेवल पे तो आई थिंक इंडियन इकोनॉमी हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इंडिविजुअल लेवल पे. जैसे माइक्रो के भी 15 क्वेश्चन शायद नहीं थे, 10-12 होंगे, फिर मैक्रो के लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस थे. इंडिविजुअल लेवल पे नियरली इंडियन इकोनॉमी से 15 क्वेश्चंस थे. आउट ऑफ 75 14 और 15 क्वेश्चन, सो विच इज नियरली 20% ऑफ दैट. गॉट इट. मैथ एंड स्टैट से भी फिर थे नियरली आई थिंक 23 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ एंड स्टैट, बट मैथ एंड स्टैट टुगेदर, सिर्फ मैथ से तो करीब 10-11 और स्टैटिस्टिक्स के भी 10-12 क्वेश्चन से, तो नियरली 23 क्वेश्चन वर देयर लास्ट ईयर आई एम टॉकिंग. तो डेफिनेटली देयर वुड बी लार्जेस्ट शेयर ऑल टुगेदर मैथ एंड स्टैट, डेफिनेटली मैथ एंड स्टैट, इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो मैक्रो, यह पहले करेंगे. उसके बाद अगर आपको मन करे कि सर नहीं ग्रोथ मॉडल ये सब थोड़ा मेरा वीक है सर, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ISLM मॉडल मैक्रो का आप करेंगे, लेकिन जो मुंडेल फ्लेमिंग का मॉडल अगर आप बेसिक कर रहे हैं तो ठीक है. आई थिंक ISLM BP कवर, दीज थिंग्स आर येट टू बी कवर्ड, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, नो नीड टू वरी. यह सब टॉपिक आप बेसिक कर रहे हैं तो ठीक है, इसके डीप में नहीं जाना, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी लेंथी टॉपिक, ठीक है. जब आप ISLM BP करो पढ़ोगे, नियरली इसमें 15 to 16 डिफरेंट कंडीशंस हैं, ये सारे कंडीशन को पढ़ोगे और इससे एक क्वेश्चन आएगा, कोई मतलब नहीं है 2 घंटा बर्बाद करने का. गॉट इट. तो सिलेबस को काफ़ी बारीकी से करना है एंड प्लीज डोंट इग्नोर एनी पर्टिकुलर टॉपिक. अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यू सी दैट अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि परमानेंट, रिलेटिव, लाइफ हाइपोथेसिस, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना. यह नहीं कि रिलेटिव पढ़ ली और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, नहीं. सिलेबस जो यहाँ लिखा हुआ है उसको 100% करना है, दैट इज मिनिमम, दैट इज नॉट मैक्सिमम. यह तो मिनिमम करना ही है, करना चाहे आपको बेसिक क्यों ना आए, कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है. अब मान के चलिए यहाँ लिखा हुआ है कि यार ये कर लिया, छोड़ देता हूँ, हटाओ LPP टफ है, छोड़ देता हूँ. नहीं, क्यों छोड़ोगे. देखो यू सी लास्ट टाइम दे आस्क द बेसिक थियरी, बेसिक क्वेश्चन दे आस्क कि क्या ऑप्टिमाइजेशन होता है LPP में, क्या हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, क्या फिजिबल कंडीशन होता है, एकदम बेसिक दे आस्क. तो इसको छोड़ना नहीं है. हाँ, अगर इसमें टफ आए तो सबके लिए टफ आएगा. हमारा टारगेट क्या है, एवब एवरेज, दैट्स इट. हमें टॉप नहीं करना है, हमें एवब एवरेज करना है, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना. हाँ, नाउ गो अहेड विथ योर डाउट एंड ऑल, डू आस्क. आई थिंक ऑलरेडी वी हैड लॉट्स ऑफ सेशन ऑन सिलेबस एंड ऑल. डेफिनेटली वी दिस टाइम टुडे thought ki having 1-to-1 session, but many people are not ready to have 1-to-1 session, so I think we can end up the session. But still you have any doubt, go ahead. Everything is already there and I am very sure you have watched classes, lectures, syllabus, books, everything is there. Yeah Bhavishya, go ahead. सर मेरे को कोई क्वेरी नहीं है, बट आई वांट गिव एडवाइस कि ना, मैंने पर्सनली फील करा है कि मैथ्स के जो भी बच्चे हैं, जो अगर बैकग्राउंड जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं भी है और जिनका है भी, अगर आपका 12th तक का सिलेबस स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना, तो यू विल नॉट कोई डिफिकल्टी फेस नहीं कर. एग्जैक्टली. तो थैंक यू भविष्य, प्लीज टेक हिज नोट कि आपको 12 तक के सिलेबस स्ट्रॉन्ग करने हैं और क्या करने हैं, तो कुछ नहीं, NCERT के एग्जाम्पल तक सॉल्व कर लेना है. एम आई राइट आर्या, भविष्य? यस सर. यस. एक्सरसाइज भी नहीं करना है, इवन अनसॉल्व क्वेश्चन भी नहीं करना, आपको बस एग्जाम्पल कर लेना है कि सो दैट कि यू कैन गेट द फील, ठीक है. हाँ, आपके क्लास 12 तक मैथ नहीं है, देन यू नीड सम तिगड़मबाजी कि स्कोर कैसे मैक्सिमाइज करें, ठीक है. स्टैट्स को आप पकड़ लीजिए, स्टैटिस्टिक्स आर डैम इजी. स्टैटिस्टिक्स में तो मैथ्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इवन क्लास 8 क्लास 10 लेवल तक का मैथ्स चाहिए उसमें. तो कुछ ना कुछ आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा. वी हैव बंच ऑफ लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीवन. आई कैन नॉट गो डायरेक्टली कि चलो डिफरेंशिएशन और कैलकुलस स्टार्ट करते हैं, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है. 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सपोज 2 क्वेश्चन आए कैलकुलस से, ठीक है, और उसके लिए आप दिन रात मेहनत करके ये क्वेश्चन, वर्कशीट, PYQ, NCERT और कुछ IIT के पेपर सॉल्व कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. गिवन दैट द टाइम वी आर टॉकिंग ऑन द मंथ ऑफ दिसंबर,
यू हैव 2.5 months लेफ्ट इन एग्जाम को मैक्सिमाइज करना है, माइक्रो मैक्रो मैथ्स एंड स्टैट। और हाँ, अगर आप बिल्कुल अभी तक ब्लैंक है, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा अभी तक आपका डिटेल नहीं गया है, एक्सपर्टीज नहीं गया है, तो बस यह 4 टॉपिक करें, अभी भी टाइम है, यू कैन डू इट। माइक्रो मैक्रो मैथ्स स्टैट इंडियन इकोनॉमी, बस। ट्रेड से आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड मेजोरिटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन जो है डेवलपमेंट से मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं, तो उसको मैंने मैक्रो में भी कवर किया। या अंकित गो हेड, अंकित हैड सम डाउट। सर 2023 में कॉन्वेक्सिटी और कॉनकेविटी से क्वेश्चन आए थे, वो कौन से टॉपिक से थे हमारे? वो मैथ स्टैट के हैं ना। कौन, आप सारा लेक्चर देखिए, कॉनकेविटी वगैरह बताया गया है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली। अब सम पीपल विल थिंक कि कॉनकेविटी कॉन्वेक्सिटी से आ गया है तो वो 10 दिन बैठ के वही पढ़ेंगे, क्या फर्क पड़ता है, एक क्वेश्चन आए थे, 4 नंबर के आए थे, 40 के नहीं आए थे। गॉट इट? अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, वी हैव सफिशियंट टाइम। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कॉन्केविटी समझ गए, कॉन्वेक्सिटी समझ गए, होती क्या चीज़ है, ये बेसिक पता है, आगे बढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि यार इसके टफ में नहीं जा पाऊंगा, यार क्वेश्चन टफ आ गया तो मेरे से छूट जाएगा, दैट गट फीलिंग ना, वो आपको इस रेस में जिताता है। छोड़ दीजिए ना, कोई नहीं फर्क पड़ रहा है। कोई 3 क्वेश्चन आप उधर मैक्रो से ज़्यादा कर लीजिए, कोई 2 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से कर लीजिए, आपके 4 दूनी 8 मार्क्स बढ़ गए। ट्राई टू मैक्सिमाइज द स्कोर अंकित, गॉट इट? मैं यह कहना चाह रहा हूं, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैंने माइक्रो करके नंबर लाए या मैथ्स करके नंबर लाए। मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि हाँ, अगर आपको मास्टर्स में टू डू वेल करना है, आई मीन डेफिनेटली, तो आपको आफ्टर द मार्च, आई मीन योर एग्जामिनेशन, मैथ एंड स्टैट को बेसिक विथ बेसिक इकोनोमेट्रिक्स आपको पढ़ना ही होगा। सेल्फ स्टडी इज द वे, वो करना ही होगा, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेल इन DSE and all these institutes. Many people leave DSE, I told already. I just got to know in class 10th in KV, my batchmate who was the topper, he got 3 years. He got DU and after that he went DSE. He took 3 years, in fact more than 3 years to clear masters from DSE, and he was the fantastic guy. तो प्लीज़ स्टॉप जजिंग योर सेल्फ कि अगर मुझे यह आता है तो मैं ऐसा कर ही लूँगा। नहीं, इट्स ऑल टाइम फेज, योर पैसन एंड ऑल ओवर द टाइम योर पैसन चेंजेज। आई इवन डिडंट नो, मैनी पीपल डोंट नो कि अगर अभी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो मैनी को जर्नलिज्म में इंटरेस्ट होगा, बहुत को आगे हिस्ट्री करेंगे, मैनी ऑफ यू वुड नॉट बी डूइंग इवन PhD इन इकोनॉमिक्स, कैन चूज सम अदर पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल। हाँ, बट टिल ग्रेजुएशन लेवल इट्स आवर ड्यूटी कि जो भी एग्जाम का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके सिलेबस पे 100% हमें होल्ड हो, एटलीस्ट द कीवर्ड्स रिटन देयर। और 1 या 2 क्वेश्चन कहीं से टपक जा रहे हैं एंड इट फील्स वेरी टफ फॉर यू, आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली टफ फॉर यू। फॉर मैनी ऑफ यू कैलकुलस विल बी लाइक जस्ट चुटकी का खेल, ठीक है, मैनी ऑफ यू, बट फॉर मैनी ऑफ आई मीन अदर पर्सन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट उसके लिए क्या करना है, बेसिक करके जाना है। बेसिक क्वेश्चन आए तो हम करेंगे, टफ आए तो हम छोड़ देंगे। हाँ, हमारा जो ऑल्टरनेट वे रेडी होगा, माइक्रो होगा, अच्छा मैक्रो होगा, ट्रेड होगा, वहाँ से हम स्कोर गेन कर लेंगे। आई सी ओवरऑल की आपका 200+ मार्क्स पार्ट बी में अगर आ जाए तो नो बडी कैन स्टॉप यू, DSE, JNU एंड ऑल दिस इंस्टीट्यूट। यस, DSE में वही 230 तक में आपका हो जाएगा एडमिशन। कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन पार्ट ए में कर लेना, यार 10 तक का गारंटी दे दो आप पार्ट ए में, और इधर आप 190 to 200 स्कोर कर लो। DSE भी रखा हुआ है, कितना भी पेपर टफ रहे इजी रहे, कट ऑफ लगभग पहले से पता होता है, नहीं जाएगा 240 से पहले। बुक्स एंड नोट्स, लक्षदीप इज आस्किंग सर, सी लक्षदीप इज आस्किंग बुक्स एंड नोट्स। सी, नोट आर नॉट द अल्टीमेट, ठीक है, नोट्स को कहाँ से लिया गया है, बुक से। वाइल मेकिंग नोट्स एंड मोस्ट ऑफ द नोट्स आर फ्रॉम क्लासमेट, तो बुक से आपको फिल्टर करके बताया गया ना, बुक हैज़ नो सब्सटीट्यूट। आई नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू पीपल कि ये बुक मत पढ़ो, इवन वाट एवर टॉपिक आई टीच आई टेल द बुक नेम। या मीनाक्षी गो हेड, तो इट शुड बी सप्लीमेंटेड विथ बुक एज वेल। जब आप लेक्चर देख रहे हो, अगर टाइम अलाउ करता है तो आप बुक को डेफिनेटली गो थ्रो करो एटलीस्ट। या मीनाक्षी गो हेड, मीनाक्षी एंड दीप। या गुड आफ्टरनून मीनाक्षी। Sir, you have instructed us to finish the video lectures before December 10th, right? You can go ahead little longer, 15 तक भी आप ले सकते हो। या So, sir, I'm trying my maximum to finish it before December Okay, 10th. okay. And, sir, I'd like to know what should I do after that? I mean, I should focus more on PDF. हाँ, आफ्टर जब आप लेक्चर देख लोगे, वाइल लेक्चर इटसेल्फ आई डिडंट टेल वन थिंग, तो वाइल लेक्चर इटसेल्फ ना आपको कुछ कुछ टॉपिक में डिफिकल्टी लगेगी, यार ये टॉपिक कम है, या ये टॉपिक शायद सर ने ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं किया है, या यह टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया है। गॉट इट? सो यू कीप नोटिंग दोज टॉपिक फर्स्ट एंड ट्राई टू फिनिश दोज थिंग्स विद इन ए वीक,
then go through PYQ, practice, and definitely you have your semester exam. I'm not sure ki some people are droppers and all. Sir, no, sir. I have completed my graduation last year itself. ओके, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट. तो फिर तो आपका DSC JNU इतना तो स्कोर बनता है. फिर क्या करो, आप एक्स्ट्रा लेवल करो, लेवल को अप करो. माइक्रो में आपने थ्योरी किया है तो सारे न्यूमेरिकल्स कर लो. मैक्रो में भी थ्योरी किया है तो ISLM वगैरह हो गए, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स हो गए, या फिर केंसियन के जो भी मल्टीप्लायर हो गए उसके न्यूमेरिकल्स धड़ल्ले से करो, एकदम एक तरफ से अच्छे से. देन शिफ्ट टू न्यूमेरिकल, because numerical is the ultimate. If you solve the numericals, na, numerical takes your concepts, numerical takes care of your basic maths, and numerical definitely the numerical part जो कि फाइनल होगा. तो numerical is very very important. I don't make you people की मतलब कि इन द फियर कि डर पैदा करना और न्यूमेरिकल बोल के टफ करना. आई टेक थिंग्स फ्रॉम लाइट वे, ठीक है. उसके बाद यू गो टू द टफ वे, बॉटम टॉप अप्रोच. पहले बॉटम फिर टॉप, नो नीड टू गो टॉप एंड बॉटम. बट इफ यू आर डन विद द बेसिक्स एंड ऑल, देन फॉलो टॉप बॉटम अप्रोच. टॉप की चीज़ों को पहले करो, टफ की चीज़ों को पहले करो. जैसे कंज्यूमर थियरी है, ठीक है, सॉरी कंज्यूमर सरप्लस है, तो कंज्यूमर सरप्लस में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. विल डू आफ्टर द दिसंबर सेशन, विल डेफिनेटली डू. जो कंज्यूमर सरप्लस है बेसिक वाला, लास्ट टाइम लीनियर मॉडल के आए थे, ठीक है, बेसिक आया था कंज्यूमर सरप्लस का एक न्यूमेरिकल. बट विल डू इंटीग्रेशन वाला न्यूमेरिकल. पॉलिनोमियल अगर डिमांड कर पॉलिनोमियल वे में रहेगा तो देन हाउ यू कैन डू. तो दीज थिंग्स यू कैन डू फ्रॉम योर साइड ऑल्सो. बट अगर मुझे दिया गया जिम्मेदारी तो डेफिनेटली आई विल डू फॉर ऑल ऑफ यू ना. आई कैन नॉट पुट ऑल द टफ क्वेश्चन. तो मीनाक्षी, इफ यू आर डन विद द बेसिक लेक्चर्स, देन लिटिल यू शुड जस्ट ऑर्बिटल शिफ्ट यू नीड. थोड़ा टफ कर दो. हाँ, Actually, I'm in tension, sir. नहीं Will नहीं I नहीं, be able to टेंशन complete नहीं it लेना है, tomorrow? टेंशन नहीं लेना है. एंड टेंशन इज समटाइम्स गुड फॉर अस. टेंशन आ रहा है मीन्स यू हैव जनरेटेड द पैसन इन यू कि आपको उसको लेके टेंशन आ रहा है. कुछ लोग तो लेते हैं अरे चिल रहो यार, हो जाएगा यार, 2 महीना है यार. नो, दिस इज नॉट द वे. सच एटीट्यूड डजेंट वर्क इन एग्जाम. इन एग्जाम यू शुड हैव killing attitude, and tension 10-20% tension is good for health. Don't be in over tension, but tension is good for exam na. When exam is in near, little bit tension is good. And have faith in me, have faith in you, as well as the syllabus के बाहर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं. दैट आई हैव सीन. लास्ट ईयर 1-2 क्वेश्चंस आ गए थे CLRM वगैरह बेसिक, ठीक है, उन्हें छोड़ देना है. एवरीथिंग वी कांट कवर. यूपीएससी में भी जो प्रीलिम्स का कट ऑफ जा रहा है जनरल कैटेगरी का 40% कट ऑफ जा रहा है, 80-85. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो हमें एवब एवरेज से एवब होना है. डोंट बी एवरेज, जस्ट एवब. DSC JNU 100% रखा हुआ है, ट्रस्ट मी. Okay, sir. Thank you. Yeah, go ahead. Few minutes, 2 to 3 minutes we can take. Do ask anything, and thank you for asking the honest question, because such problems many of you have the same problem. चलिए, सर लास्ट ईयर DSC की फीस कितनी हुई थी? देखिए मैं जनरल तक का बता रहा हूँ. जनरल का एडमिशन जो हुआ है 235 में हुआ है, बिकॉज 235 हु गॉट सम दुबे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, इन HCU. आई मेट हिम, his father also met me. I am from SU. So he got rank 1 here, and he didn't get admission in DSC, but at the last round after few days he got there. So that is the exact score I remember, 235 जनरल कैटेगरी DU का. और OBC का एज फार एज आई रिमेंबर 186 नॉन DU कैटेगरी. एग्जैक्ट डेट नहीं है, आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट. डेफिनेटली पब्लिश इन आवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज ऑन माई यूट्यूब चैनल. सो यू डोंट हैव टू वरी. हमें यह रखना है कि हमें मैक्सिमाइज कितना करना है स्कोर. मैक्सिमाइज हमारा टारगेट है तो मिनिमम अभी 240 रखें, ठीक है, दैट शुड बी द मिनिमम टारगेट. और JNU के लिए मिनिमम 200 रखें आउट ऑफ 300. उसके बाद एज पर द नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड ऑल विल डेफिनेटली फिगर इट आउट. ठीक है अंकित? सर हाँ बोलिए दिलखुश जी. डिस्कशन कर देते टेस्ट का करेंगे. देखिए टेस्ट आपको ब्रेन, वो टेस्ट जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग है. डिस्कशन हम PYQ क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे विथ PYQ पे मैं काम कर रहा हूँ. एंड वी हैव सफिशिएंट टाइम. मोटा मोटी सिलेबस आपका खत्म है ना. नाउ इट्स योर ड्यूटी. अभी मैं अगर क्वेश्चन बनाना सॉल्व कर दूँ, कुछ जो टॉपिक मिसिंग है उसको मैं पूरा कर दूंगा. और एंड ऑफ दिसंबर से क्लासेज आपके कैसे चलेंगे, अब मैं क्लासेज में थियरी और टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा. डेली हम 5-10 क्वेश्चंस लेके आएंगे पर्टिकुलर टॉपिक का, ISLM का, केंसियन का, या पर्टिकुलर किसी मैथमेटिक्स का, या पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स का. दैट टॉपिक वाइज वी विल डिस्कस. ठीक है?
दैट आई कैन डू। एक न्यूज़पेपर में कितना टाइम दें और कौन सा इम्पोर्टेंट है फॉर इंडियन कुछ न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन इकोनॉमी के लिए न्यूज़पेपर मत पढ़िए, पार्ट ए के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ने का मेरा मकसद यह है कि इंडियन इकोनॉमी तो बहाना है, आपको पार्ट ए के लिए ट्रेन करना है। पार्ट ए में देर आर 10 क्वेश्चन दैट, हाँ, दैट कम इन एंड इंग्लिश में कोई यह नहीं बोल सकता है कि मैं डी से हूँ, मैं यहाँ से हूँ। मैनी अ टाइम्स आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 5 6 7 तक बन जाएंगे, 2-3 टफ आएंगे। इंडियन इकोनॉमी को फ्री मूड से पढ़िए। आपको लास्ट में एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मैं पूरा 1 साल का जो भी क्रोनोलॉजी हुए हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वगैरह वो मैं लाइव क्लास में करवा दूंगा। आपको इंडियन इकोनॉमी के लिए सो जाना है। मैंने प्रीवियस ईयर देखा था उसमें, तो एसएससी के लिए इंग्लिश कह रहा था, उसमें लगभग हाँ हाँ हाँ, एनफ है, एसएससी लेवल एनफ है, एनफ। तो कभी भी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से अभी न्यूज़पेपर मत पढ़िए, जितना मैं करवा दे रहा हूँ उतना एनफ है। हाँ, थोड़ा बहुत जो मेजर स्कीम्स वगैरह आ जा रहे हैं न्यूज़ में, कुछ मेजर आ रहे हैं, मेजर स्कीम को आप कैसे जज करोगे? दैट स्कीम इज रनिंग फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स और ईयर और स्टिल इट इज़ इन द एग्जिस्टेंस, तो दैट स्कीम यू शुड हैव। जैसे अभी कुछ दिन पहले ने गवर्नमेंट ने जो पीएम गरीब कल्याण योजना था, विच इज़ की 5 kg आपको अनाज दिया जाता है या तो फ्री या काफ़ी मिनिमल कॉस्ट में, उसका एक्सटेंशन किया है। तो दैट बिकम्स मेजर स्कीम, क्योंकि यह लास्ट 3 ईयर से चल रहा था सिंस कोविड, और अभी भी यह आगे चलेगा। तो यह आपको पूछा जा सकता है कि कितना ईयर का एक्सटेंशन हुआ है या इसमें क्या फीचर्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसको ऑब्जर्व करना है। जो ये वन टाइम का न्यूज़ होता है ना, वन डे वाला, उसको नहीं करना है कि आज गवर्नमेंट ने यह अनाउंस कर दिया, आज वो अनाउंस कर दिया, 4 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गए, 2 रुपये डीजल ये हो गए, ये सब पे ध्यान नहीं देना है। मेजर न्यूज़ विच इम्पैक्ट्स द लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसे कवर करना है। हाँ, चलिए गणेश, यू हैड सम डाउट, गणेश वर रेजिंग द हैंड। हाँ सर, सॉरी, मुझे ये पूछना था, मैं गोखले के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ सर, बट इशू है उनके PYQs नहीं है, गोखले के PYQ नहीं है। कैसे रखें? आई टोल्ड CUET इज द मास्टर, whosoever cleared, you can get Gokhale but you may not get CUT, but whosoever got CUET they all got Gokhale. Last year from whom I taught, more than 15-16 people got Gokhale, and the common thing were all of them had good score in CUT. तो if you are scoring good in CUT, गोखले आपका रखा हुआ है। वो क्यों नहीं देते हैं कॉमन और PYQ में बता दे रहा हूँ। गोखले इज टाइड विथ इंडस्ट्री, 2000 to 3000 उनका फी है एप्लीकेशन का, ठीक है। एंड नेचर ऑफ क्वेश्चन इज नॉट दैट टफ इन इकोनॉमिक्स। आई हैव डन आई थिंक 2 सेशन ऑन गोखले एज वेल ऑन आई थिंक यूट्यूब, यू माइट हैव वॉच्ड दैम, ठीक है। तो लेवल काफ़ी इजी है। हाँ, बेसिक जो अदर चीज़ें पूछते हैं वो रीजनिंग वो आप अपने लेवल पे कर लेना। मैं इकोनॉमिक्स का लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। इकोनॉमिक्स में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। CUT लेवल का कर लोगे आप तो बिल्कुल सो जाइए, गोखले इज डन, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स। हाँ, अदर पार्ट जो उसके रहते हैं उसको आप थोड़ा टेक केयर कर लीजिएगा, ठीक है। Okay, then I think we said we can wrap it up. If anyone has any doubt, definitely go ahead. We'll wrap it up. Yeah, Laksh. सर हाँ, सर आई हैव डाउट। सर मेरा ये है कि मतलब आपके जो वीडियोस है, जो लेक्चर है, वो इनफ है या उसके अलावा भी कुछ पढ़ना ज़रूरी है? क्या मैं बोला, ज़रूरी है ही नहीं। अगर उस लेक्चर से आपको लग रहा है कि मुझे बिल्कुल समझ में आ जा रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ यार इस लेक्चर से PYQ भी हो जा रहा है, तो बुक ना पढ़ें। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आगे मुझे इकोनॉमिक्स में अच्छा करना है, आई थिंक दिस इज़ नॉट सफिशिएंट एंड वी हैव रियली एनफ टाइम, गो अहेड विद द बुक एज वेल। 3 चीज़ें। मतलब सर हाँ बोलिए। अगर हम सिर्फ मतलब जो आपने लेक्चर्स लिया अगर उन पे फोकस करें और बाकी जो टाइम बचेगा उसके यस, बाद बुक्स एग्जैक्टली वही तो मैं बोला। आई टोल्ड इवन इन द टेलीग्राम टेक्स्ट टाइप, फर्स्ट यू फिनिश द लेक्चर। I just given tentative deadline that 10-15 December. It is not tentative. You take your time, but first finish the lecture. And whosoever has any doubt, you can turn on your mic and definitely ask. तो आप पहले लेक्चर को फिनिश करेंगे, उसके बाद अपने टाइम के अनुसार द सेम आई टोल्ड मीनाक्षी ऑल्सो कि यू सी द योर वीक एरियाज, देन गो टू द बुक आफ्टर फिनिशिंग द लेक्चर। गॉट इट? सर UGC नेट के क्वेश्चन लगा सकते हैं हम? डेफिनेटली पेपर 2 आई ऑलवेज एडवाइस, दैट इज द बेस्ट सोर्स, डेफिनेटली यू शुड गो। कॉमन सिलेबस, जैसे UGC नेट में अब एक प्रॉब्लम क्या है, अब उनमें कुछ इकोनोमेट्रिक्स हैं, कुछ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स हैं, यह सब आपके सिलेबस में नहीं है। तो एक बार सिलेबस को मैच कर लेंगे और इतना आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप जाओगे ना, यू विल डेफिनेटली क्रैक JRF। मैंने भी जब PG का तैयारी कर रहा था तो वही किया था, एंड लकीली आई गॉट थ्रो UGC JRF इन माई फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, एंड डेफिनेटली यू विल डू, क्योंकि आपका माइंड सेट उस तरह से ट्रेन हो जाता है। एंड द गुड थिंग इज दैट इवन आई फाउंड
UGC नेट पेपर इज ईजियर देन CUET, यू माइट हैव ऑब्जर्व, CUET से भी ज़्यादा आसान होते हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन। तो या मिक्स करके आप कर सकते हैं। या प्रीति इज रेजिंग हैंड, गो अहेड। हाँ, डू आस्क इफ़ यू हैव एनी डाउट। एंड आई थिंक सम चैट में क्वेश्चन है, लक्ष्य हो गया सर, रिप्लाई टू माई कंसर्न, 1 सेकेंड, प्रांशु इज आस्किंग सर क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स माइट टेक टाइम टू कंप्लीट लेक्चर्स। गो अहेड प्रांशु, आई डिडंट टेल यू कि 10 दिसंबर ही होना चाहिए, आप 10 जनवरी लो ना, इट्स ऑल अप टू यू। एग्जाम आपका मार्च में होने वाला है, जितना जल्दी हो सके आप खत्म करो, नो इशू। क्रैश कोर्स एंड ऑल बोथ हैव द सेम लेक्चर, द ओनली डिफरेंस इज टाइम एज आई टोल्ड। या गो अहेड, टेक योर टाइम, फिनिश द लेक्चर। अब ये नहीं कि ज़बरदस्ती 2x पे और 1.5x पे जल्दी जल्दी खींच के देख रहे हैं, नहीं, प्रॉपर टेक योर टाइम, टेक इवन एंड ऑफ दिसंबर, हु ज्वाइंड वेरी लेट, पीपल हु ज्वाइंड आई थिंक बिफोर अक्टूबर, they should complete by 10 to 15 of December and will start revision session from the half of December। 15-20 तारीख के बाद से मैं सेशन को वो डेली 5-10 क्वेश्चंस लेके आएंगे हम क्लास में। आई एम नॉट गारंटिंग यू कि 1 घंटा का ही लेक्चर होगा, 5 क्वेश्चंस लाऊंगा आपके सामने, उसे सॉल्व करूंगा या मैं सॉल्यूशन लेके आऊँगा एंड विल डिस्कस टॉपिक वाइज। कुछ थ्योरी के होंगे, कुछ न्यूमेरिकल होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है सेशन 1 आवर का होगा, इट कुड बी 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, बट डेफिनेटली देर विल बी ए रेगुलरिटी दैट आई एम इंश्योरिंग। चलिए, गो अहेड इफ एनीवन हैज एनी डाउट, और इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक 1 आवर, वी कैन रैप इट अप। सर क्वेश्चंस के भी रिपीट लेक्चर मिलेंगे ना? हाँ डेफिनेटली, अगर आप मिस करोगे तो मैं उसे अपलोड करूँगा ही, सारा लेक्चर रहेगा, उसका एक वो बन जाएगा प्रैक्टिस सेशन करके, एक मैं फोल्डर बना दूंगा और सारे क्वेश्चन वो मिक्सड रहेंगे। मिक्सड मतलब कि कुछ माइक्रो के रहेंगे, कुछ मैक्रो के रहेंगे, तो पर्टिकुलर एक फोल्डर बन जाएगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर द CUET एंट्रेंस, ठीक है। और सारे उसी फोल्डर में जितने भी लेक्चर होंगे 10-15 जो भी रहेंगे सारे वहीं अपलोड रहेंगे। यू डोंट नीड टू वरी कि क्लासेज मिस हो गई तो मैं कैसे देखूंगा, वो सारा आप रिकॉर्डेड लेक्चर में देख सकते हो। चलिए, आई थिंक एवरीथिंग इज डन एंड या प्रीति, यू हैड सम क्वेरी, गो अहेड। यस सर, सर आई एम लाइक मैं कर रही हूँ, मैं बहुत सारे मेरे टॉपिक्स एक्चुअली कवर कर लिए हैं। ओके। एंड मैथ्स में मैंने लाइक सेट्स, लीनियर प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लाइक सर इंटीग्रेशन मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है, यू नो, तो मैं उस टॉपिक को लीव करके एंड आई एम जस्ट लाइक डूइंग एवरी क्वेश्चंस। नो, डोंट लीव, जस्ट डू द बेसिक। इंटीग्रेशन टफ लग रहा है आपको, जो क्लास में करवाया गया है बेसिक, बेसिक मतलब एकदम नॉर्मल वाला, चेन रूल क्या है, सब्स्टिट्यूट रूल क्या है, एकदम बेसिक वाला, 1 लाइनर 2 लाइनर जिसके कि तुरंत आंसर आ जाते हैं, उसको आप कर लो, ताकि अगर उस तरह के 1-2 क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में लीव ना करो। हाँ, टफ थिंग्स यू कैन स्किप, नो इशू। हाँ, गो अहेड। एंड सर मैं टॉपिक्स जस्ट लाइक मैक्रो एंड माइक्रो के जो टॉपिक्स हैं सर, जस्ट लाइक पहले लेक्चर्स, एक लेक्चर देखती हूँ या 2 लेक्चर, फिर उसके बाद जो टॉपिक कवर होते हैं तो वो चैप्टर्स में रीड करती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बिकॉज वाइल टीचिंग itself, if you have remembering, if you are I mean recollecting the words, I definitely tell कि for this lecture you go through this book का this topic। अगर मैं मार्केट पढ़ाया हूँ तो आई टेल कि गो थ्रू वंस कोत्स्यानी बुक मार्केट चैप्टर। तो इफ़ योर इनर साइड अलाउज यू कि हाँ यार थोड़ा टॉपिक देख लेते हैं व्हाट सर हैज़ टोल्ड, देन गो। अदरवाइज यू कैन फर्स्ट स्टिक टू द लेक्चर, कंप्लीट द लेक्चर एंड राइट ऑन द पेन पेपर, हाँ फॉर दिस लेक्चर सर हैज़ टोल्ड टू रीड दिस थिंग्स। आफ्टर फिनिशिंग लेक्चर you can read that is another way. Yeah, Navya, you are new and I think, yeah, okay. Yeah, Navya, you have some doubt, go ahead, you can ask. You just joined, right? Yeah, do ask. I think we are done. Shall we wrap it up? I'm still waiting. I'm not, in a way, in the mood to leave, but you can ask. Questions are not coming. I think most of the things I have already covered in the 20 minutes of session. How to maximize the score. This session is not about कि सर ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ये बुक कहाँ मिलेगा, वो बुक कहाँ मिलेगा. Have patience. सारा चीज़ PDF आपको टेलीग्राम में या ऐप पे अवेलेबल है. इन ऐप गो टू द फ्री मटेरियल सेक्शन. या नव्या, यू वर रेजिंग द हैंड. या गो अहेड. सर एक्चुअली वो जो नोट्स हैं स्टैट्स के अब बाकी सब सब्जेक्ट्स के, मैं सोच रही थी उन्हें प्रिंट आउट. You can do ask in the group. People have already downloaded, they have printed. So these are small things. Ask some bigger things ना. You can download. और दिक्कत हुई तो I can send you even, mail you that PDF. No issue. थैंक यू सर. हाँ.
Ask something bigger, I mean, which can maximize your score, which is really troubling you to make all these strategy and all. Definitely I can that assist you. Anyone? सर जैसे हाँ बोलिए. हम में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है हम्म. प्रिपेयर करना, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि आप हमें एमसीक्यू यस यस आप थोड़ा लेट हो गए. प्लीज़ वॉच दिस सेशन आई विल अपलोड ऑन द ऐप एज वेल. You can watch it, you will get everything afterwards. If you have a doubt, and use the discussion group जो वो आपका मैंने CUT वाला बनाया है ना, उस डिस्कशन ग्रुप को आप चिट चैट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. एज ए फैमिली, वी हैव ए फैमिली ऑफ 200+ पीपल. उसको आप कुछ भी पूछो कि यार टेंशन हो रहा है, यार ये नहीं समझ में आ रहा है, यार ये टॉपिक कहाँ से पढ़े, कुछ भी पूछो तो पीपल हेजिटेट टू टेक्स्ट. एंड इट्स नॉट योर रेपुटेशन कि कुछ पूछ देने से आपका रेपुटेशन डाउन हो जाएगा. आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग यू, आई एम टेलिंग दिस टू एवरीवन. आपको पूरा नीचे ग्राउंड पे चिपकना पड़ेगा, आपको अपने आप को सेल आउट करना पड़ेगा. ये नहीं आ रहा है भाई, ये बता दे भाई, वो बता दे, ये क्वेश्चन कैसे बना, एकदम सिंपल. आप पूछो तो पीपल विल हैव ऑटोमेटिक क्यूरियोसिटी. इफ़ यू विल बी टेकिंग द स्टेप, अदर पीपल विल गेट मोटिवेटेड. हाँ यार मैं भी पूछता हूँ, क्योंकि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा फिर, मतलब ग्रुप है नहीं है, उसको आप यूज़ तो करो इफेक्टिवली. जेन्यून क्वेश्चन रहेंगे. इफ़ आई हैव टू इंटरवीन, आई विल डेफिनेटली इंटरवीन. हाँ, क्वेश्चन अब बियॉन्ड टॉपिक जाके आप कुछ से कुछ किए जा रहे हो और उसमें अपने आप को शोबाजी नहीं कराना है. आई वॉन्ट टेक द नेम. लास्ट ईयर, नॉट दिस ग्रुप, वी हैड अनदर ग्रुप दैट डिस्कशन वाला जो कि नियरली 2000 पीपल का है. देयर पीपल वर जस्ट शोइंग ऑफ कि मुझे ये आ रहा है, मुझे वो आ रहा है. आफ्टर दैट आई हैड ए chat with all those students. I observed all the students, 3-4 students were there. None of them scored more than 150, and they were asking very good questions. I realized कि ये क्वेश्चन कहाँ से ला रहे हैं, गूगल से उठा के, PYQ से उठा से, या किसी कोचिंग के मटेरियल से ला के वो दिखाना चाह रहे हैं कि आई हैव रीड दिस मच. यह एटीट्यूड ना करें. नन ऑफ दोज 4-5 स्टूडेंट्स हैड स्कोर मोर देन 150. यह बिल्कुल ना करें. आपको आ रहा है, अच्छी बात है. हाँ, फॉर द सेक ऑफ रिविजन अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए. टेक योर डाउट वाला थिंग्स फर्स्ट. डाउट अगर आपको ज़्यादा आ रहा है, किसी में कन्फ्यूजन लग रहा है, तो वह चीज़ों को क्वेश्चन में करें. और अभी मैं डिस्कशन में क्विज मोड भी ऑन कर दूंगा, तो यू कैन मेक योर सम क्विज काइंड ऑफ थिंग्स एंड यू कैन आस्क. ठीक है, जस्ट आफ्टर द सेशन विल डू इट. यूज इट इफेक्टिवली. और 2-3 महीने हैं, मिल के अच्छे से हो जाएगा. टारगेट इज ओवरऑल 240+ DSE श्योर, और 300 में 200+ JNU श्योर. इतना मिनिमम टारगेट रखें. दिस इज फॉर द जनरल कैटेगरी, एंड इफ यू आर एमिंग फॉर जनरल कैटेगरी, अदर कैटेगरी तो उससे कम जाएगा कट ऑफ. ठीक है. एंड स्लोली प्लीज डोंट पुट योर सेल्फ इन ट्रबल कि यार ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है. कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. लेकिन ये 4 चीज़ें, माइक्रो, मैक्रो, मैथ्स, स्टैट, इंडियन इकोनॉमी, यह चारों आपको बेस्ट करना होगा. यस. हाँ, मैथ स्टैट का एडवांटेज आप कहाँ ले सकते हैं, दैट ट्रिक आई एम टेलिंग यू. इफ़ यू आर वेरी, आई मीन नॉट गुड इन मैथ्स एंड स्टैट, एवरेज तो आपको होना पड़ेगा. एडवांस लेवल के मैथ स्टैट ना करके आप बेसिक जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के 2-3 क्वेश्चन ट्रेड सही कर लेंगे, और 2-3 क्वेश्चन आप ग्रोथ डेवलपमेंट के सही कर लेंगे, तो 5-6 क्वेश्चन आपका यहाँ जो है टफ वाला मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स कंपनसेट कर देगा. दैट कुड बी द अनदर वे. ठीक है, चलिए देन डन. या गो अहेड. सर जो कॉलेजेस की फॉर्म आती है वो बता दीजिएगा. सब कुछ बता जाएगा भाई. IIT JAM का सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. और आप लोग 200+ लोग हैं, हेल्प ईच अदर ना. ओके, थैंक यू दिलखुश. यू आर आस्किंग एंड आई एम गिविंग द सेम थिंग टू अदर्स. जैम वगैरह का एग्जामिनेशन फरवरी में है, इनको सीरियसली मत लें. डोंट मेक इट लाइफ. राइट ओपन हार्ट, अच्छे से एफर्ट करें. जिनका मैथ स्टैट माइक्रो अच्छा है उनका रिजल्ट हो जाएगा, और इसको डू एंड डाई का सिचुएशन मत लें. फॉर्म ही नहीं भर पाया, ये पता नहीं चला कि कब फॉर्म आया. देखे तो डेट निकल चुका था यार. 29 को मैंने एक अपडेट किया था. आई थिंक ग्रुप तुम नहीं देखते हो टेलीग्राम को. मैंने अपडेट किया था कि गेट का 29 आई थिंक सितंबर था या समथिंग. आई अपडेटेड इन टेलीग्राम ग्रुप एज वेल. I can give the screenshot after the session. I will send the screenshot. I have updated it. We have 3 different telegram. एक मेरा ऑफिशियल वाला है और अपना डिस्कशन में. ठीक है, टेंशन मत लीजिए. कौन सा फॉर्म कैसे? क्या बोले नव्या जी? सर DTU के लिए, DTU से अगर MA करना हो, ये CUT में ही है ना. ऑल आर अंडर CUT. फर्स्ट यू क्लियर द एग्जामिनेशन टिल मार्च. नो नीड टू वरी. आफ्टर मार्च एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. ठीक है. सर IIFT का भी एक बार प्रोसीजर आप एक्सप्लेन कर दीजिए. आ जाएगा. एक IFT का मैंने सेशन लिया था. आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट सम न्यू स्टूडेंट्स हु जस्ट गॉट एडमिशन. 23 बैच विल हैव बेटर सेशन विद देम ऑल्सो. ठीक है. और नॉट मी
take equal responsibility, equal and shared responsibility to update all these things. You people are more aware than me, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें करने होती है. And this is not, class is not the only thing I have to do. I am also a student, I also study, I have also my old PhD things. सो होप यू कैन अंडरस्टैंड. और इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए मैंने कॉस्ट वॉस्ट प्राइसिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं रखा है. इवन वी कुड बीडल टीम और अच्छा खासा आप 20-30,000 फी रख के कर सकते थे. बट आई हैव नेवर एम्ड. आई एम्ड कि जो भी मैंने 5-6 साल में सीखा है दैट आई कुड ट्रेन यू एट द अफोर्डेबल रेट. ठीक है, दैट इज़ माई एम. तो जस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एटलीस्ट मेक अवेयर, कीप अवेयर. ठीक है. हाँ लक्ष्य, यू आर स्टिल रेजिंग द हैंड. इंट्रेंस नहीं होगा, CUET. आई टोल्ड अगेन एंड अगेन, CUET इज़ द मास्टर ऑफ ऑल एग्जाम. गिवन दैट कि आप IGDIR ये वगैरह अगर आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, हाँ अगर आप IGDIR हो गए, ISI हो गए, MSc हो गए, गोखले हो गए, IFT हो गए, ये 5-6 जो इंस्टीट्यूट है इनका सेलेक्टिवली अलग से फॉर्म आता है. अदर एग्ज़ाम जितने भी हैं, DTU आई थिंक स्टेट यूनिवर्सिटी है, DTU हो गई, या फिर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सारे के सारे CUET में. एक बार आप गूगल तो कर लो, पुट सम एफर्ट. हाँ आ जाएगी वो CUET के ही अंदर है. आई विल ट्राई टू गेट one exclusive session with DTU. One of my student Vishal, he scored I think 198. He was getting almost everywhere, but he joined DTU because of his comfortability and Delhi के पास है, तो it's good. It's a better opportunity. It's a better option if you don't get JNU and DSC. I think DTU is good one in Delhi. सर DTU में दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए भी रिजर्वेशन होता है ना? हाँ तो that is better option. True. चलिए फिर. ओके देन जस्ट पुट ऑल एफर्ट एंड विल कीप मीटिंग एवरी मंथ. आई विल ट्राई टू गेट इन टच कि क्या प्रोग्रेस है, क्या किया आपने, क्या. ओके भविष्य, थैंक यू. एंड यार अपने पे फेथ रखें, वी कैन डू इट. व्हाट आई फेल्ट, जस्ट कीप फेथ इन यू, यू कैन डू इट. एंड प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर एफर्ट. यानी कि फेथ रख लिए, एफर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए तो फिर दिक्कत होगा. थैंक यू प्रीति, थैंक यू भविष्य, थैंक यू सो मच. चलो गुड लक एंड विल मीट एंड टेक योर टाइम. चलो मैंने 15 दिसंबर तक दे दिया है. 15 दिसंबर तक प्लीज़ ट्राई टू फिनिश ऑल द लेक्चर. वंस लेक्चर इज फिनिश ना, आई विल जस्ट पिक अप एनी रैंडम टॉपिक. डेली 5-10 क्वेश्चंस आई विल डू. मेरे पास बाउंडेशन नहीं रहेगा कि आज हमें ISLM ही करने हैं. अगर मैंने ट्रेड का कोई टॉपिक फिनिश कर दिया तो मैं ट्रेड का करवा दूंगा क्वेश्चन. एंड दैट क्वेश्चन विल बी नॉट ओनली हैंडमेड, इट कुड बी समटाइम्स PYQ, HCU, JNU, इसका भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ नेट के क्वेश्चन हो सकते हैं. बट ऑल टुगेदर इट विल बी नॉलेज इन्हांसर, इट विल एड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन. दैट्स फॉर श्योर. प्लीज डोंट मिस ऑल दोस लेक्चर. इफ यू मिस द लाइव क्लास, रिकॉर्डेड विल बी देयर. चलिए सर अगर खुद से प्रैक्टिस करनी हो तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. उसमें थोड़ा सा हाँ प्लीज़ मुनीरा गो अहेड. सर मुझे पूछना था कि जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लाइक जिनका 12th में भी मैथ्स नहीं था, तो लाइक जो मैथ्स एंड स्टैट्स है तो फिर अभी लाइक वो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए एक ठीक है, उसको मैं थोड़ा अच्छे से देखूंगा. व्हाट्स द प्रॉब्लम. आई थिंक स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटिवली ईजियर क्योंकि उसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स का इंक्लूजन नहीं है, तो दैट स्टैटिस्टिक्स पार्ट यू फोकस. और मैथ्स के जो पोर्शन है, शायद सेट थियरी आप देख लिए हैं. सेट हो गए, बेसिक डिफरेंशिएशन हो गए, बेसिक इंटीग्रेशन हो गए. इसके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो मैं क्लास में करवा दूंगा डिस्कशन में. ठीक है, डिस्कशन वाले फॉर्म में मैं करवा दूंगा. बेसिक वाला एडवांस करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आई हैव टू इनकैप्सुलेट ऑल द स्टूडेंट्स. और आउट ऑफ 24 क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर आया था, आई एम एज्यूमिंग दिस टाइम अगेन 20+ क्वेश्चन रहेंगे. 8 to 10 यू कैन डू. और मैंने बताया था उसका सब्सटीट्यूट, बाकी जो 10 जो कि टफ होंगे आप नहीं कर पाओगे, उसको आप मैक्सिमाइज करो फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी, फ्रॉम ट्रेड, फ्रॉम ग्रोथ डेवलपमेंट. ठीक है, हर व्यक्ति का जिसका मैथ स्टैट अच्छा है, कोई ज़रूरी नहीं है उसका काफ़ी सब कुछ अच्छा ही होगा. दे मे बी नॉट गुड इन इंडियन इकोनॉमी, दे मे बी नॉट गुड इन डेवलपमेंट. तो यू पार्क ऑल दोज टाइम, एफर्ट एंड योर इंटरेस्ट इन दोज एरिया, क्योंकि अभी हमें मैक्सिमाइज करना है स्कोर. अभी हमें मैथमेटिशियन नहीं बनना है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. होप यू कैन रिलेट इट. ओके चल. नहीं, प्लीज़ डोंट फॉलो दिस स्ट्रेटजी. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर आर रॉन्ग. प्लीज़ डोंट फॉलो लॉन्ग कट स्ट्रेटजी. गाइड से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे. CUT का फॉर्म जनवरी में आ जाएगा. गाइड से क्वेश्चन एक भी नहीं आएंगे और क्वेश्चन ना ही PYQ से आएंगे. इट्स टाइम टू ट्रेन योर ब्रेन. वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है, CUT सिलेबस को देखती है
क्वेश्चंस के टाइप को अधिक डिस्कस करें। जैसे आपने अब बजट का कुछ करा, आई मीन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कॉप डगलस के 4-5 न्यूमेरिकल किए, तो डू ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ बुक्स। बेस्ट बुक फॉर CUET लेवल आई फाउंड। अगर आपके पास मेहता मेदनानी वगैरह भी है तो वो भी ठीक है। इवन बेसिक लेवल में एच एल आहूजा से भी काम चल जाएगा। एच एल आहूजा है, पिंडिक रूबेनफील्ड है, कॉस्सियानिस है, इसके सारे एग्जाम्पल कर लो। हर चैप्टर में 2-3 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल सारे कर लीजिए, दैट इज मोर देन एनफ। सॉल्व एग्जाम्पल, क्योंकि आपको, हाँ बोलिए। एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। डू द ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एच एल आहूजा, बी इट माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, कॉस्सियानिस, ऑल दिस ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्रॉम दिस आई मीन बुक्स वी स्टडी ना। और एक जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस के लिए, इट्स वेरी टफ टू गेट दोज बुक, आई वुड डोंट जनरली रिकमेंड। आई थिंक दैट पिक आई विल सेंड यू, येलो और ब्लू कलर की बुक है, कल्याणजीत राय चौधरी, इट्स वेरी गुड बुक। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आती है, बट अगेन हमें स्कोर मैक्सिमाइज करना है, हमें सिर्फ माइक्रो नहीं पढ़ना है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैं बता रहा हूँ, सिर्फ क्लास लेक्चर आप देख लोगे, जितने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपका 200 इकोनॉमिक्स में रखा हुआ है, 180-200 ओनली क्लास लेक्चर एंड द थिंग्स आई टोल्ड यू टू डू, आई मीन क्वेश्चन पेपर या पर्टिकुलरली दिस थिंग, इवन विदाउट मच प्रैक्टिस ऑफ ऑल दोज थिंग्स। प्रैक्टिस ज़रूरत होती है खासकर IIT जैम वगैरह के एग्जामिनेशन में या ISI वगैरह में, जहाँ पे क्वेश्चन टफ होते हैं, काफ़ी कंसेप्चुअल, एक क्वेश्चन में 5-7 क्वेश्चन की क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। इफ़ यू हैव अटेंडेड माई क्लास, मैंने एक इलास्टिसिटी का क्वेश्चन करवाया था फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के PYQ से। जनरली न्यूमेरिकल जो भी मैं करवाया हूँ माइक्रो में, वो IES या IAS के न्यूमेरिकल हैं। तो इन वन क्वेश्चन 4-5 कंसेप्ट यू नीड, सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आर मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो आपके पास है, जो पहले टारगेट मैं दिया हूँ आपको करने, पहले उसे कर लें। PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट कहाँ से आएंगे? कंसेप्ट से, क्लास लेक्चर से, यहाँ से डायरेक्ट आएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस। पहले प्रैक्टिस में यू में मिस समथिंग। पहले क्वेश्चन, पहले टॉपिक को फिनिश करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, लेक्चर के नोट्स बनाने हैं, इफ़ टाइम अलाउज बुक करना है, और साथ ही साथ क्वेश्चन करना है। यह नहीं कि पहले क्वेश्चन करना है, पहले क्वेश्चन करके मैनी पीपल थिंक कि पहले क्वेश्चन कर लिया और सारा टॉपिक कवर कर लिया, ऐसा नहीं होगा। पहले टॉपिक करना है, क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। आई एम वर्किंग ऑन इट, हैव पेशेंस, हैव फेथ, विल डू इट, वी हैव एनफ टाइम, आवर क्लास लेक्चर्स आर डन। अब सिर्फ प्रैक्टिस हमें 2 महीना करना है, दैट आई विल डू, डोंट वरी। ठीक है, और PYQ अपने तरफ से आप करना चाह रहे हैं तो JNU, HCU, BHU, थोड़ा बहुत मन हो तो DSE इज समटाइम्स डिफिकल्ट, और CUET, CUCET 2018 से CUET का एग्जामिनेशन हो रहा है, टिल 21 इट वाज नेम्ड एज CUCET, दोज आर ऑल्सो गुड क्वेश्चन, और फिर CUET वी हैव फॉर लास्ट 2 years। तो इतने तो मैं चीज़ों बता दिया, मोर देन आई थिंक 2000 क्वेश्चन यू विल गेट, दैट इज एनफ। The problem of R. Gupta is that lots of error there and it's difficult to figure out all the error. That is not bad book, it's good book, but it has lots of error. Okay? इसमें काफी गलतियां, उसमें चेक करने का भी कोई मेथड नहीं है। That's what I told ना, that's why I never recommended that book. Please. चलिए फिर, allow me to say bye. चलिए दिलखुश, चलो bye bye. All updates will be shared, everything will be shared on Telegram group as well as on the app. Good luck, all the best for the examination. We'll meet again most probably next month. चलिए।